Okay, so ladies and gentlemen, please give your attention here. The topic which we talked about yesterday as well, briefly, but today you will be getting the recorded video of the same as well. And that is, as you understand, that this course is about signal processing. And in the signal processing, we have three different domains in which we can place our signal for analysis to visualize it. One is, as you know, is the time domain signal. The second one is the frequency domain signal. And the third one is the time frequency domain, which is number 3. That's the reason I have placed 3 different areas on the screen. Your time domain signal can be a continuous time signal, or can be a discrete time signal, or can be a digital signal as well. But here I am considering only the continuous time and discrete time. For example, in your lab 8, you produced a signal which was a 2-tone signal having a frequency of 300 hertz and 600 hertz. It may look something like this. So it is an example of a time domain signal. But for the engineers, the time domain signal does not have too much information to analyze, because engineers are mostly interested, and especially the communication engineers are mostly interested. Both the DSP engineer and communication engineers are interested in, for example, if they have to design some system. Now, this system allows a certain part of the frequencies and disallow others. So first of all, it should know that what frequencies are present in the signal. Then they will place some bars on the signal and remove that part which is not desired. Or when a noise is added to the signal, for example, which is an unwanted signal, you convert it, you change it into the frequency domain and see what is added to your signal. Similarly, the communication engineers are too much worried about, are interested in the bandwidth. And what is bandwidth? Bandwidth is the frequencies. Bandwidth is they are interested in the spectrum of the signal. And you can see or visualize the spectrum in the frequency domain. That's the reason engineers are not interested in the time domain, but they are interested in either in the frequency domain or in the time frequency domain. Is it clear? Now, the question is here, okay, but in this case, in this course, as you know, it is about the discrete time signals. I will not be touching the continuous time signals. Why? Because in the signal system previous course, I have been told that you have done this work of converting your time domain signal into frequency and vice versa, which means the frequency back into the time. That's the reason I'm not too much interested in this area, but this doesn't mean it is not important. It has been covered already. That is my argument. My point is that I should be only concentrated on the discrete. Furthermore, do understand that if this continuous time signal is a periodic and you are interested in its frequency domain, you should be using the Fourier series. You should be using the Fourier series. And if it is a non-periodic, then you will be using the Fourier transform. But as I said that this is not the scope of my course. My scope is about the discrete signals. And normally from the continuous time signal, we get the discrete time signals. जैसे मैंने आपको कहा कि you got your 2-tone signals, and then if you remember, you chose a sampling frequency. Inshra, what was that sampling frequency in your lab 8? Have you completed your lab 8? Where is Inshra? नहीं है? Okay, कौन है फिर? उसके बैक पे फिर उसके बैक पे कनीज है? अच्छा बीच में एक जंप है. ये ना कहना अनीस है, उसे कह उसके दरमियान में एक जंप है कि जंप लगा के आगे जाओ जिधर भी नजर आ जाएगी. ठीक है फिजा? तो क्या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ली थी लैब 8 में?
80,000. So which means you are taking 80,000 samples from your continuous time signal to get your discrete signal. And now that can be placed in your computer, whether it is a general purpose processor or it is a DSP processor, whatever, but you have something in your memory to process. Now, if you are interested to look at the frequency of this discrete signal, you will be using the Fourier transform. You will be using the Fourier transform. So, ladies and gentlemen, if before going into this slide, if I give you a summary first and then come back here, probably it will be nice. And the summary is somewhat like this. Summary is somewhat like this. G. Okay, summary is that mostly you have a continuous time signal like your voice signal, for example, or your two-tone signal in your lab 8. And probably in the coming week, you will be taking 3 voice signals and you will be playing with it. You will be recording, might be recording 3 voice signals separately, and will we have a monotonic signal in between, embedded in between these 3 voice signals. So hopefully it will be an interesting task for you. So ladies and gentlemen, you took a continuous time signal, which you normally represent by capital small x of t. And you choose a sampling frequency fs, and by using the sampling frequency, you discretize your continuous time signal into a discrete time signal, which you normally represent by x of n. अगर फिजा के लेफ्ट राइट पे कोई भी मुझे बता दे कि हाउ एक्स ऑफ टी is converted into x of n by choosing a f of s. है फिजा के लेफ्ट राइट पे कोई जो मुझे इसका जवाब दे दे? कौन बताएगी? कौन है जी लेफ्ट राइट पे? है कोई? जिन्नात है, नजर नहीं आते, या नजर आते बोलते नहीं है, इन्ना बोलने वाले जिन्नात हैं। जी, आप बताना चाह रहे हैं? हम उस इस सिग्नल में से लेट करें, ये आपका सिग्नल है, आप ये पूरा सिग्नल की बजाय एक सर्टेन टाइम पे इसकी वैल्यूज को नोट करते जा रहे होते हैं और बाकी सारे को ड्रॉप कर रहे होते हैं, बाकी सारे को ड्रॉप कर रहे होते हैं। यानी ये पार्ट आपने ड्रॉप कर दिया, ये पार्ट आपने ड्रॉप कर दिया, ये तो सारा ही ड्रॉप, और ये बाकी जो रह गया ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल रह गया। बात समझ आ रही है? एंड यू थ्रो द रेस्ट, जैसे मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया। एंड हाउ मेनी सैंपल्स यू टेक पर यूनिट टाइम, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs। अगर मेरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 80K थी, जैसे कि मुझे पीछे से अनीस ने बताया, तो मैंने 1 सेकंड में कितने सैंपल उठाए? मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने लैब 8 में टास्क दिया कि 80K आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकंड में मैंने कितने सैंपल्स उठाए होंगे? नॉट श्योर। व्हाट मीन बाय द रेट? सैम्पलिंग रेट, व्हाट मीन बाय द रेट? पर सेकेंड। तो जब आपको बड़ा क्लियरली बताया जा रहा है कि दिस इज दी 80K सैंपल्स पर सेकेंड, जिसका मतलब हर सेकंड में मैंने 80,000 सैंपल्स उठा के अपनी मेमोरी में, रैम में स्टोर किए। अब बात क्लियर हो गई? ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इस 80,000 सैंपल पर यूनिट टाइम फॉर एग्जांपल को मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के हवाले कर दिया। एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसलिए आई एम नॉट श्योर, बट आपका जो कॉम्प्लेक्स का
सब्जेक्ट होता है उसमें आप क्योंकि मैंने पेपर के दौरान चेक किया, कई उसमें फोरियर के क्वेश्चन मौजूद होते हैं, बिकॉज इट डील विद दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. So you take your real number x of n and you convert it into x of e minus j omega, which is complex. This something is discrete. This something x of n is discrete, no doubt, because you have taken it now. It is not always at certain time you have the samples. It is discrete. But your name? Malaika. What about this signal? It is continuous. That is written here. Whether it is you represented by x of e j omega or you represented by x of omega, both are same. This is a continuous signal ranging from minus infinity to plus infinity. And that phenomenon, when you apply your this formula, this is called Discrete-Time Fourier Transform. Do remember, Discrete-Time Fourier Transform. From minus infinity to plus infinity. However, mostly we compute from 0 to infinity. Mostly we compute from 0 to infinity. तो आप मजबूरन कहना नहीं पूछेंगे, हम अनीस से ही पूछ लेंगे कि अनीस क्यों 0 to infinity? Because mostly the signals are causal. The real systems are causal. तो causal system में negative part नहीं होता, तो it is 0 to infinity. बात समझ आ गई? लेकिन अगर पेपर में दे दूं तो ये नहीं कहना कि जी नम इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. क्लियर? अभी बताऊंगा कि कैसे आपने करना है, लेकिन आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए कि नाउ द बट द प्रॉब्लम इज स्पेशली फॉर द कंप्यूटर दैट इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल एंड यू कैन नॉट कीप द कंटिन्यूअस सिग्नल इन योर मेमोरी, इन योर RAM, sorry. So again you have to discretize it. Again you need to, again your signal will be, your variable is omega. जैसे यहाँ पे t था, यहाँ पे n था, your this is omega. And अगर आप ओमेगा को रियल सेंस में समझते हैं तो ओमेगा is something like this. Omega is something like this, starting from 0 and coming to 2 pi, 0 to 2 pi, then 4 pi, then 6 pi, and so on. कुछ बात समझ आ रही? And this is the digital frequency having a value from 0 to 2 pi. So this is the amplitude of this vector, which is 1, and this is the omega, which is the angle, which is the frequency. So this is maybe it is pi by 4 radian. Pi by 4 radian. It might be pi by 2 radian. It might be pi radian. It might be 3 pi by 2 radian. Anything. But it is 0 to 2 pi continuous. 0 to 2 pi, it can take any value. Clear? That's the reason if I show it like this, that this is 0, this is 2 pi, and this is your signal, x of e j omega. X of e j omega. So what you do? You discretize it again because it is like a continuous signal, like here. It is shown here as well, probably better here. G. So this is your x of e j omega, omega ranging from minus infinity to plus infinity. So what you are doing? You are taking the samples of this frequency domain signal. And what is left behind? Again, you may assume that this is gone, and what is left behind is these samples.
samples of at omega places. So we will call it now DFT, Discrete Fourier Transform. What will we call it? And these will be the indexes of the frequency represented by maybe K. So now your X of Ej omega after sampling is become X of K. तो अगर कल मैं आपसे X ऑफ Ej ओमेगा जिसको X ऑफ ओमेगा भी लिखा जाता है ये मांग लेता हूं तो इसका मतलब है कि आई एम आस्किंग यू अबाउट द DTFT. और अगर मैं कहता हूं X ऑफ K नहीं भी बताते हुए you should understand that I am asking you about the DFT. क्लियर होगी मेरी बात? Is there any confusion? जी जेंटलमैन. नहीं, टोन सिग्नल का तो मतलब ये है कि एक ही फ्रीक्वेंसी. अब आपकी वॉइस है क्योंकि अगली लैब जो है जब की जाएगी तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड कहें व्हाट्स योर नेम, हमजा की वॉइस पर हमने रिकॉर्ड करनी है तो हमजा की मोनोटोन तो नहीं है. इट इज अ मल्टी टोन सिग्नल. इट हैज मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज. जिन लोगों को म्यूजिक का समझ होती है जब सिंगर जो है वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यहां से जनरेट करता है तो उसको बड़ी अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं बड़ा रियाज किया हुआ है. तो ही कैन चेंज एंड क्रिएट मतलब क्यों. फॉर एग्जाम्पल आपका नुसरत फतेह अली खान फॉर एग्जाम्पल या उसका नेफ्यू are considered to be the better singer because they can generate from here multiple frequencies and can shift from one frequency to another very sharply. नहीं, एक ही टाइम पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज. इवन अगर आप यही चीज हम चाहते हैं कि आप अगली लैब में लैब 9 में करें और इसको देखें. क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं जी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये आपको बताना मकसद था हमजा कि व्हाट यू विल बी डूइंग दैट यू विल बी कन्वर्टिंग योर discrete time Fourier signal, discrete time Fourier transform signal which is X of omega into X of K by employing the DFT. That is the summary of the work which I want to show today. Clear with the summary? Is there anyone who is not clear, not convinced? And that's something, a good algorithm to calculate the DFT is FFT. And that you have used in your lab number 8. Fast Fourier transform. We are confused. जी करें. जी मैंने ये कहा कि बेसिकली तो ये यहां भी मैंने 2 पाई रेडियन लिखा तो आप एज्यूम करें कि अगर ये एक सर्कल है इस सर्कल को आप यहां से पकड़ के यूं खोल लें तो दैट इज एक एंड हो जाएगा 0 दूसरा एंड हो जाएगा 2 पाई. बट रियलिटी यू अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एंगल एंड ऑल दिस. And when you talk about the complex numbers, it is this thing that it has some magnitude. Like here, the magnitude is 1, and it has some angle. Probably, if you know about the 2 ways to represent the complex number, one is definitely that is rectangular, which doesn't show you neither the magnitude nor the angle. But if you talk about the polar, it shows the magnitude and it shows you the angle. And if you talk about the Rej theta, it again tells you, which is the exponential form, it tells you again the amplitude and the angle. So yes, it has the amplitude and angle. Clear? Okay. अगर क्लियर है तो मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाता हूं. यहां पे तो मैंने कहा कि जी अगर मेरी इस प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो मैं कह सकता हूं कि आई गॉट एट x of n which is a discrete signal. And I use the mathematical method, which is Fourier transform, and I got X of Ej omega or X of omega, whatever you write, doesn't matter. And now the signal is continuous. So as the signal was discrete,
you will see in a minute that this, you to convert it, this discrete signal into output, we will be doing the summation from minus infinity to plus infinity. But for the realistic signals, from 0 to infinity. Make sense? लेकिन अगर, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये वाला सिग्नल जो है दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस, तो फ्रॉम द कंटिन्यूअस सिग्नल आई वांट टू गो टू द डिस्क्रीट सिग्नल. If here I have performed summation, if here I have performed the summation, ओके जी. तो फिर बोलने वालों से पूछेंगे कि क्लास में बोलते हो तो फिर बताओ कि अगर समेशन से मैं, सॉरी, अगर मैं कंटिन्यूस सिग्नल से वापस आना चाहता हूं टू द डिस्क्रीट सिग्नल, and that will be called as, if this was called as the discrete time Fourier transform, discrete time Fourier transform, it will be called as inverse discrete time Fourier transform. और बोलने वाले खुद ही हाथ उठा के बता दें कि इसके लिए मुझे, जैसे यहां मैंने समेशन किया, या मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन. बोलने वाले समझ गए, समझ गए, समझने वालों को समझा दिया, डोंट वरी जी अबाउट. तो दिस इज कॉल्ड दी, व्हाट यू विल बी यूजिंग हियर, summation. You will be using the integration. Clear everyone? Okay. Then, and this is now in the, this is in the frequency domain, and this is in the time domain. So it means I am playing in the, either in the time domain or in the frequency domain, as you did in your lab 8. कि आपने टाइम डोमेन में भी अपना सिग्नल देखा और इसलिए कहा कि उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी करके दिखाओ, और आपने देखा. ठीक है, वो अलग बात है, मुझे नहीं पता कि बैसियत कौम बड़ा बुरा अशर है हमारा कि हम गलत काम भी करते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं. ये अभी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, ये इनको एक टेस्ट दिया गया, ये इस तरह डिफेंड कर रहे थे. अभी मैं आपसे क्लास शुरू करने से पहले गया और देखता हूं तो वहां पे टेस्ट हो रहा है और सारे मिल के चीट कर रहे हैं. तो और उसमें वो फख्र भी कर रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है. जैसे देखें यहाँ पे, दिस इज दी एग्जाम, और वो ये भी नहीं मान रहा कि एग्जाम है. अभी मैं दूंगा मैडम सुमैया को, फिर वो जो करेगी माशाल्लाह माशाल्लाह. इनकी अब जो होनी है कि मान लेते कि गलत है तो फिर चलो हम खामोश हो जाते हैं. कहता है कि नहीं, ये तो कंबाइंड टेस्ट है, कोई क्या कहता है. मैंने कहा चलें ठीक है. मैडम को कहते हैं कि थोड़ा सा ग्रुप टेस्ट, इनका ग्रुप एग्जाम ले लो क्लास में. ओके जी, बी बैक नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन. तो हमने कहा कि जी यहां पे हमारे पास ये आ गया, दैट इज दी डिस्क्रीट. नाउ दिस इज द डिस्क्रीट बट दिस इज द कंटिन्यूअस, बट एंड दैट इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. नहीं समझ आई? मैंने अभी ये समझाया कि जब आप, ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल था, ये डिस्क्रीट सिग्नल आपने फोरियर को दिया, इट प्रोवाइड यू ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल. It provided you a frequency domain signal. Now, if you want that this frequency domain signal
which is continuous is changed into discrete. Again, the simple way, you have to sample it. किसी भी कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में ले जाने का बेहतरीन तरीका है सैंपल करो। तो इसको हम सैंपल कर लेते हैं। जब हम इसको सैंपल कर लेंगे, इसको हम जब सैंपल कर लेंगे SAMPLE, तो वी विल बी गेटिंग x ऑफ k and that will be called discrete Fourier transform. That will be called discrete Fourier transform. अगर वापस आना हो तो इनवर्स करेंगे, और अगर आगे जाना है, इसमें जाना है, तो फिर और प्रोसेस करेंगे फंक्शन फर्दर, और यानी सैंपलिंग करेंगे, और सैंपलिंग करने के बाद हमारे पास ये कंटिन्यूअस सिग्नल डिस्क्रीट हो जाएगा, स्टिल इट विल बी द फ्रीक्वेंसी डोमेन। हाँ, अगर आप इसको भी वापस लाना चाहते हो तो you will be doing inverse discrete Fourier transform and you will be getting your x of n back. You will be getting your x of n back. This is back. अब समझ आए? ऑब्जेक्टिव क्लियर है? तो हम मोस्टली इन दो ही डोमेन्स में खेलते हैं, लेकिन ये डोमेन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मसला ये है कि जब इसको देख रहे थे, मिसाल तौर पर इस सिग्नल को देख रहे थे, तो एम्पलीट्यूड वह तो नजर आ रहा था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे आप हमजा की वॉइस को कैप्चर करेंगे, आप सिबगा की वॉइस को कैप्चर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देखने से कोई पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। When you will be convert them into the frequency domain, आपको ये तो पता चलेगा कि हमजा और सिबगा की कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ये फ्रीक्वेंसी किस टाइम पे थी, ये फ्रीक्वेंसी किस टाइम पे थी। टाइम इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। So there come then the time frequency analysis, where you have the three. यहाँ पे two dimension अभी आपने देखा, one was the amplitude of the frequency and the other your was the x-axis was the frequency. Now you have the frequency, you have the time, and you have the amplitude in 3 dimensions. Clear? And this is called the time frequency domain, not included in your course, but just for your information कि अगर आप में से कोई फ्यूचर में एडवांस डीएसपी साइड पे जाता है, एडीएसपी साइड पे जाता है, तो इट माइट बी अ गुड इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्टडी और सब्जेक्ट टू स्टडी। क्लियर एवरीवन? अब इसी चीज को अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह आप इधर से एक्स ऑफ ई जे ओमेगा से, क्योंकि जब आपने इससे इसमें गए तो यू डिड दी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आप यहां से जाना चाहते हैं एक्स ऑफ के की तरफ, सॉरी, आप जाना चाहते हैं एक्स ऑफ के की तरफ। किसकी तरफ जाना चाहते हैं? एक्स ऑफ के की तरफ। तो दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी तरह अगर आप यहां से वापसी करना चाहते हैं तो दिस इज इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, और अगर आप यहां से वापसी करना चाहते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन करेंगे। इसलिए ये इंटरेस्टिंग है कि फॉर द फर्स्ट टाइम डीएसपी सिंक्रोनाइज हुआ है। सिंक्रोनाइज का मतलब है जो थ्योरी में होता है वही प्रैक्टिकल में होता है। मैं बार बार अभी लैब 8 आपने किया, मैं लैब 8 को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। तो हमारी होना यही चाहिए कि जब दोनों चीजें आप एक दफा थ्योरी पढ़ रहे होते हैं और उसी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो यू अंडरस्टैंड बेटर। क्लियर? अली? 2 दफा पूरी
जी, अगर आप एक्स ऑफ एन को इसमें ले जाना चाहते हैं तो उसका अपना तरीका है, और अगर आप इधर से इधर जाना चाहते हैं तो मैथमेटिकली, तो अगर आप प्रोसेस वाइज देखें तो पहले हम यहां जाते हैं और फिर उसको सैंपल करके यहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? अगर क्लियर है तो फिर थोड़ी सी डेरिवेशन मेरे साथ देख लें और फिर वापस आते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। होपिंग इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू, क्योंकि नो, हु इज देयर विद नो, दैट इज गुड, गुड, वी अप्रिशिएट दिस। लाजमी नहीं कि हर चीज में इंटरेस्ट हो, लेकिन लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से कि रीजन लेस वो ऑप्शन है तो फिर तो वी डोंट एग्री विद यू। अगर रीजन वाइज कोई वो है तो देन वी कैन फिक्स इट एज वेल, वी कैन फिक्स इट देन। तो व्हाट्स योर नेम? अननोन नहीं है, हम नामालूम अफराद के हवाले कर देंगे फिर। जी, मुनीबा नहीं, मुनीजा। जी मुनीजा, कोई मसला है? क्यों आपको डीएसपी को आपको ओके, वापस आए जी फिर इस पे बाद में। लेकिन ये याद रखें कि दिस इज ए वन ऑफ द एरिया जिसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि सिग्नल इज एवरीवेयर, जैसे आपको कहा पता है कि चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, यानी कोई भी आप फील्ड अगर देख लें तो सिग्नल्स आर देयर एंड यू हैव टू प्ले विद द सिग्नल। तो सिर्फ ये कह देना हाँ उस पर टाइम लगाएं और फिर समझ ना आए तो फिर मेक सेंस, और अगर आप टाइम ही लगाएं ना और कहें जी मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर बात थोड़ी सी, फिर जैसे इन्होंने कहा फिर बात है कुछ रसवाई की। तो वापस आए जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि यहां तक हमें समझ आ गई कि वी हैव एन एक्स ऑफ एन एंड वी कन्वर्ट इट इनटू, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एक्स ऑफ ई जे ओमेगा, which is equivalent to x of omega. This is just the representation. How to do it? Ladies and gentlemen, you take your x of n and do a mathematical trick on it, which is called discrete time Fourier transform. And how it's simple it is that you are only taking your input and multiplying it with a e j omega n and taking the limit from minus infinity to plus infinity. अब आप में से कई लोग हैं जिन्होंने कहा लिखा जीरो है बोलते माइनस हो। In mathematics it is minus infinity to plus infinity, but in reality the system and signals are mostly causal. That's the reason we use from zero to infinity. But if a system आपको कहा जाए कि it is a non causal or anti causal, yes, then it is from minus infinity to plus infinity. क्या मुश्किल है इसमें? बात समझ आ रही? Okay. Now, ladies and gentlemen, when you have this output, this is the summation. If you take the summation, this summation is telling you different frequencies present in the signal. मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मुनीजा की ही आवाज को कैप्चर करे कोई और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी, वॉइस की फ्रीक्वेंसीज बताए, और ये खुद ये काम करे तो इट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। इसको पता चलेगा इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी लो फ्रीक्वेंसीज को क्या क्या है, एनर्जी उनमें कितनी है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज में कितनी है, हाई है नहीं है, डिपेंड्स। तो दिस इज इंटरेस्टिंग समथिंग टू वॉच। हम जब किसी के ऑडियो को चेक करते हैं, आपने देखा होगा बाज़ लोग कहते हैं कि जिसकी फोरेंसिक कराएं कि ऑडियो इसकी है कि नहीं है। यहां पे भी हम उसकी यही देखते हैं कि अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसीज तो ये है, इसकी इस सिग्नल के अंदर भी वही फ्रीक्वेंसीज हैं, तो फिर तो ये मुनीजा की आवाज है। और अगर नहीं है इसका मतलब है कि इसको लाजमी तौर पे जब क्रिएट किया गया है कुछ फर्क होगा। तो वहां पे उस शक की बिना पे कहा जाएगा नहीं जी इट इज ए क्राफ्टेड सिग्नल, नॉट द ओरिजिनल। तो हाउ
That is not something boring. Those people who are love to analyze things, they love to study the signal process. बात क्लियर होगी मेरी? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहां पे देखें तो यू व्हेन यू हैव दिस समेशन, आउटपुट समेशन, दिस इज कॉल्ड x of e j omega, or you may call it discrete time Fourier transform. So your initially index was n, now your variable is omega, which means your input was discrete but your output is continuous and having a value from 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. So this, if asked to produce your discrete time Fourier, yes, it is like this. But if you take some, like here, 0 to 2 pi, repeating 0 to 2 pi, it means 2 pi to 4 pi, 4 pi to 6 pi, and so on. It is continuous. कुछ बात समझ आ रही है? Ladies and gentlemen, to make it discrete Fourier, you take the, instead of the whole values, you take the samples of it. You take the samples of it. You may look from two perspectives. One is like this, 0 to 2 pi. And here is your signal in the frequency domain. So you take the samples, equally spaced samples from here. You take equally spaced samples from here. And you remove the, you throw the original. बात समझ आ रही? तो this is your now DFT. Or agar in reality, because it is omega, which is an angle. If you make a circle from it, you will get something like this. 0 and then back 2 pi. 0 को पकड़ो और ये 2 pi को इसके साथ मिला दो, तो you get something like this. और या इसको पकड़ो और इसको खोल दो, तो you will get something like this. अब मैंने कहा क्या करो, इक्वल स्पेस सैंपल्स ले लो इससे. 0 to 2 pi में इक्वली स्पेस, क्या मुश्किल बात है? जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास सुबह आपके वालिद साहब आपको 500 रुपीज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप 4 बहन भाई हो, आपस में इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो. इसका मतलब एवरीवन विल गेट 125. नाइस. तो यहां पर भी हमने इसको इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया. लेट इट बी, आई हैव डिवाइडेड इनटू k parts, k equally spaced samples. Here I have taken 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and back 0. Muniza, how many samples I have taken? 8. How many? Muniza, back 6, 7 or 8? How? पहले 7 कैसे थे, अब 8 कैसे हो गए? 0 भी है, तो 0 to 7 is 8. So I have taken 8 equally sampled, equal space samples. 8 कोई कुरानी आयत में नहीं लिखा हुआ. जैसे मिसाल के तौर पे, if you remember, जब FFT करते थे तो हम कहते थे मिसाल तो 1024 सैंपल्स, 512 सैंपल्स. तो वो आपका वो है कि जितने मर्जी सैंपल, जितने सैंपल ज्यादा लोगे, द क्वालिटी इज बेटर, बट मोर द प्रोसेसिंग मैटर्स. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, this is the amplitude of this. This is the EJ. This is EJ omega. This is the amplitude, which is 1. तब नहीं लिखा हुआ तो 1 है ना. तो this is 1 is the amplitude. This is 1 is the amplitude. And this omega is the angle. This omega is the angle. Clear? So for the time being, do remember that this formula is the, sorry, this formula is your DTFT.
This is your DTFT. जी बच्चे, क्यों खैरियत? तो DTFT नाउ मैंने इसमें क्या करना है, मैं जो इसको सैंपल किया, तो here which means I have to find the value of omega which was continuous initially into these samples, 0th sample, first sample, second sample, third sample, fourth sample and so on. Is it clear? तो मैंने अभी कहा कि टोटल 2 पाई है, मैंने इसको n सैंपल, तो हर सैंपल किसके बराबर होगा? 2 पाई बाय n, हर सैंपल 2 पाई बाय n, यानी ये भी 2 पाई बाय n है, ये भी 2 पाई बाय n है, ये भी 2 पाई बाय n है, ये भी 2 पाई बाय n एंड सो ऑन. Clear? Now, ladies and gentlemen, I go back to my this slide. जी, तो वही देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह जैसे कि मुझे मुनीजा ने बताया कि 8 सैंपल्स हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, और मैंने कहा अगर ये मेरा पहला सैंपल है विच इज हाफ ऑफ द 90 विच मीन पाई बाय 4, ओमेगा इज पाई बाय 4. फिर मैंने कहा कि क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2 पाई बाय 8 exactly the one, it is equal to pi by 4, no difference. क्यों किया अभी भी बताता हूं, क्योंकि क्लियर करता हूं अभी. नेक्स्ट क्या होगा, पाई बाय 4 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2. तो मैंने यहां पे पाई बाय 2 को लिख दिया 2 पाई बाय 8 विच इज अगेन पाई बाय 2 है नेक्स्ट, तो 2 2 जा 4, 4 बाय 8 पाई बाय 2. नेक्स्ट क्या था, यहां पे क्या होगा, अगर इफ आई चेंज द कलर, द नेक्स्ट वन इज दिस वन, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4. कैन आई राइट लाइक दिस? जी बिल्कुल, 3 2 यहां से कैंसिल हो जाए तो 3 पाई बाय 4 एंड अप टू 7, क्योंकि मेरे पास 0 to 7 है, और अगर 0 लेना हो तो 0 into 2 पाई बाय 8. अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सैंपल्स, इक्वली स्पेस सैंपल्स. और ये 0 1 2 3 4 मुझे क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, अगर मैं इसको, क्योंकि ओमेगा की इक्वल टू पाई बाय 4 मैंने कहा था, अगर आप मुझे तवज्जो दे रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या था, के, फिर क्या है 2 पाई, और यहां पे क्या है, इसका मतलब है कि जहां पे ओमेगा है, इफ यू रिप्लेस दिस ओमेगा बाय k 2 पाई बाय n, यू हैव सैंपल्ड योर फ्रीक्वेंसी, यू हैव सैंपल्ड योर फ्रीक्वेंसी. और यही चीज यहां पे की गई, यही चीज यहां पे की गई कि मैंने इस ओमेगा की जगह 2 पाई बाय n, 2 पाई के डिवाइड बाय n पुट कर दिया, जबकि k की वैल्यू 0 से लेके n माइनस, जैसे वहां पे 0 से 7. क्लियर? देन इज द सेम इज डन हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैंने ओमेगा की जगह 2 पाई के डिवाइड बाय n पुट कर दिया, एंड दिस इज दी, वो था DTFT, ये है DFT. Gentleman at the back, what's your name? मोहम्मद. मोहम्मद समझ आ रही है? ओके, तो दिस इज द फार्मूला फॉर, एंड दिस समथिंग इज कॉल्ड द फेज फैक्टर, एंगल, EJ है ना, EJ थीटा, थीटा क्या होता है, फेज. तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड, this factor is called phase factor or tidal factor, and this x of n represent the magnitude of this phase or this frequency.
कुछ समझ आ रही? क्योंकि बेसिकली इफ यू लुक एट देयर, EJ थीटा इज साइन थीटा कॉस थीटा प्लस J साइन थीटा, यही है ना? एंड थीटा इज 2 पाई f, 2 pi f is the frequency. So it shows the frequency as well as the phase as well as the magnitude. देखिए ना आपने, from your maths, this is the Euler's identity जो कहता है कि EJ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा. अगर यहाँ पे थीटा प्लस प्लस सम फाई, तो इट विल बी cos थीटा प्लस फाई प्लस J sin थीटा प्लस फाई. सो this one, this अगर आप इसको क्लियर थीटा लिखें तो थीटा इज 2 पाई, f represents frequency of the sample and this phi represent the phase angle. So this is showing you the frequency, the phase and the amplitude. So this is normally called as the phase factor. What we call it? Phase factor. Clear? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके दो फॉर्म और रिवर्स कैसे करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है. अभी देखते हैं इस चीज को का. पहले इसको देखने से पहले मैं इस पे आता हूं कि अगर आपके पास x ऑफ n है, अगर आपके पास x of n है and you have to calculate the DTFT, so you have to use the n is equal to 0 to infinity x of n, जैसे अभी आपने देखा EJ ओमेगा n माइनस EJ ओमेगा n. अगर आपने वापसी करनी है तो दिस इज कंटिन्यूअस, you have to use the integration and you will come back to the, and this will be called as in the inverse discrete time Fourier transform, and this is given here. This is given here. So this something is called the inverse and its counterpart is called the pair. What we call it? A pair. एक फ्रीक्वेंसी टाइम को फ्रीक्वेंसी में ले जाता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी को वापस टाइम में धकेल देता है. इसी तरह अगर हम यहां देखें, इसको हम यहां पे देखें कि अगर ये डिस्क्रीट है तो वी हैव x of n, we have x of n and we have converted into x of k. So what we have used? DFT, discrete Fourier, and that is given by x of k is equal to summation from 0 to n minus 1 x of n, this is capital N of minus 1, x of n e minus j 2 pi n k divided by capital N. This is your discrete Fourier. Now this is again discrete. This is again, this right hand side is again a discrete. So if you want to come back to the discrete x of n, again you have to use the summation. So you can see here, again what I've got here, a discrete signal placed here, and do the summation. Just the difference is that instead of the time domain signal, now you have here the frequency domain signal. The rest is only the negative sign is different. The rest is exactly the same. So again, this is the pair which is converting x of n into x of k and vice versa. कुछ बात समझ आ रही? अप्लाई कर लेते हैं तो ज्यादा समझ आ जानी चाहिए. अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ आ जानी चाहिए. मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है x of n, that has the value of a, and that a is valid for n is equal to or greater than
0 and less than or equal to L, and otherwise it is a 0. If I plot it here, इसका मतलब है कि it is available at 0, it is available at 1, 2, 3 up to L, as you can understand from here. It is equal to, and all of these have a value of capital A. And for the rest, otherwise it is a 0, 0, 0, 0, and 0. This is your input signal, X of n. And you are interested to find these frequencies. So how? And one thing more, and that is the author is interested in X of omega. What is the intention of the author? नाम बताएं और काम बताएं. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. व्हाट्स योर नेम? उज़ैफा. लेकिन यहां से मुझे इशारा मिल रहा है कि नहीं जी, उज़ैफा ठीक नहीं बता रहे. ना पूछते हैं, खामोशी से अपना टाइम गुजारते हैं, और टाइम को ज़िया करना भी गुनाह है. जी मोहम्मद, क्या मांग रहा है मुझसे मेरा ऑथर? क्या मांग रहा है? DTFT लिखा हुआ है साथ. क्यों मुझसे मांग रहा है DTFT? कोई इनवर्स नहीं मांग रहा. अगर वो एक्स एफ के होता तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जी, इट इज DFT. तो फिर कल की भी तकरीबन 1.5 घंटा इस पे लगाया, और आज भी लगा रहा हूं, और अभी भी हालात, फिर कहते हैं सब्जेक्ट मजेदार नहीं है. तो कैसे मजा होगा? थोड़ी सी टेंशन ही नहीं देते हो. अब ये है फॉर्मूला आपके DTFT का, X of n E minus j omega n. अगेन, अब आप अगर यहां देखें तो आपका सिग्नल कहां से कहां तक मौजूद है? 0 से L, उससे आगे भी नहीं है और उससे पीछे भी नहीं है. तो मैंने इस तरह अपनी लिमिट्स को चेंज कर दिया, 0 to L, X of n E minus j omega n. अब इस लिमिट में X of n की वैल्यू क्या है? A. तो मैंने यहां A लिख दिया, और उसी तरह इसको कॉपी कर दिया, और अब मैंने ये A कांस्टेंट है बाहर लगा दिया, और ये आ गया. अब मैंने हुज़ैफा को, किधर है हुज़ैफा? जी हुज़ैफा साहब. हुज़ैफा साहब, मैंने एक काम आपको, अगर आपने FAC पढ़ी है तो आपसे एक छोटा सा ओ लेवल पढ़ा है इसने, कि वो माइनस लेवल पढ़ा है, क्योंकि ज्यादा नहीं तो M माइनस वाला पढ़ा हुआ है ना. तो जेंटलमैन, हमने आपसे पूछा ये है कि अगर कोई भी वैल्यू हो और उसकी पावर n, कोई भी पावर है उसकी, इसका मतलब, और n की वैल्यू रेंज करती है मिसाल के तौर पे 0 से लेके किसी भी वैल्यू तक, लेट करें 5 तक, 10 तक, जो भी है. इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3 अप टू a की पावर 5. ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये याद आ रहा है कि वहां, जी जो भी कहता है ठीक है, अगर वो है तो a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 5, और वो चाहता है कि इन सबको आपस में सम कर दो. a की कोई वैल्यू है, मे बी 2 है, मे बी कुछ है, बट नॉट इक्वल टू 1. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किस्म की सीरीज को आपने FSC में पढ़ा था बाय द नेम ज्योमेट्रिक सीरीज. और फिजा का टास्क ये है कि वो मुझे आफ्टर द क्लास मुझे व्हाट्सएप करे कि अगर इस तरह का कोई सीरीज हो ज्योमेट्रिक, तो उसमें आपने उसकी nth टर्म फाइंड करना भी वहां सीखा था,
और उसका समेशन फाइंड करना भी आपने सीखा था, और आपने एस इंफिनिटी तक समेशन भी आपने करना वहां पे सीखा था। याद आ रहा है? तो मुझे ये वाला फार्मूला चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, जो भी वो फार्मूला है वो मैंने यहां इस्तेमाल कर लिया। तो आपने मुझे फार्मूला, जो ही क्लास से बाहर जाओ, नेट अवेलेबल है, लेट मी नो, व्हाट्सएप का ग्रुप पे हो तो उसमें मुझे जवाब दो। क्लियर हो गया? ताकि आपके सारे ग्रुप वाले समझ जाएं कि ये है वो फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज का, इसके लिए मुझे चाहिए, ये मुझे फॉर द टाइमिंग नहीं चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, फाइनाइट सीरीज। क्लियर होगी मेरी बात? बस वो फार्मूला लगाओ, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अगला क्वेश्चन ये है कि अब आपको सिग्नल ये दे दिया गया लेडीज एंड जेंटलमैन, x of n, again your discrete time signal, is equal to 1 by 4 when n has a value greater than or equal to 0 and less than or equal to 2. Otherwise it is if I plot it, you can see at 0, at 1 and at 2 I have some samples, and for the others it is 0. Okay? Now ladies and gentlemen, you can see at 0 its value is 1 by 4, at 1 its value is 1 by 4, 1 by 4. So this is your x of n. X of n. अनीस ये मुझसे क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझसे मांग रहा है। तो उसका फार्मूला अभी आपके सामने ड्राइव किया गया, और वो फार्मूला ये है कि 0 to n minus 1 x of n e minus j 2 pi n k डिवाइड बाय कैपिटल N। अब क्वेश्चन ये है कि अनीस पे राइट पे कि यहां पे मुझे इस n की वैल्यू नहीं पता। अगर कोई भी अनीस के राइट पे बैठा हुआ है, बिजी है जी, अनीस का राइट का ना, जो भी अनीस का राइट है उसको पकड़ लो, कोई अनीस है तो अनीस के राइट पे मुझे बताएं कि n की वैल्यू क्या होगी। I don't know. I am interested in the value of capital N. I am interested in the value of capital N. What is capital N? समझिए आपकी बात। 3। क्या ख्याल है आपका अलीशा? 3। तो N is the equally spaced samples। तो यहाँ पे 3 सैंपल लिए गए हैं, दैट द वैल्यू, द N वैल्यू इज 3, while n minus 1 जो यहाँ लिखा हुआ है, that will be having a value of 2 and n will be having a value of 3। पहली बात हो गई। अब k की वैल्यूज क्या होंगी? देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ था, कोई छुपाया नहीं हुआ। और साथ पूछा कि k की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। तो आपको अब k भी पता है, n भी पता है, जस्ट यू हैव टू पुट इन दिस। और आपको k ऑफ x ऑफ n की वैल्यू भी पता है कि वो है 1 by 4। तो मेरे ख्याल से इससे मुश्किल क्वेश्चन दुनिया में बन ही नहीं सकता कि आपने उसको चेंज कर दिया कि 0 to 2 x ऑफ n, और n की जगह आपने पुट कर दिया कैपिटल N की जगह 3। नाउ सिंपली पुट 0, तो x ऑफ 0, n को अगर आपने 0 पुट किया तो e की पावर 0 प्लस 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करें तो 2 पाई k डिवाइड बाई 3, n की 2 पुट करें तो 4 पाई बाई 3 डिवाइड इंटू k, तो यू गॉट दिस। Now, in this, you have to put k values of 0, 1, and first put 0. So you put the value of k as 0. So it becomes e power 0. You put here k 0, e power 0. So it becomes 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4, which is equal to 3 by 4. Here you will be putting the value, the next value of k is 1. So you are putting the value 1. So you will be getting x of, जी gentlemen,
नहीं जी, n की वैल्यू जो है, कैपिटल N की वैल्यू जो वो 3 है, और स्मॉल n की वैल्यू जो है दैट इज लीडिंग फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2। अब सही है? सही है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर जी। बस देखा ना। ओके, लिसन प्लीज, लिसन। 1/4 k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जहां भी 0 पुट किया था प्रीवियस में, अब 1 पुट कर दिया। अब आपको पता है अगेन फ्रॉम योर एफएससी एंड फ्यू कोर्सेज ऑन मैथमेटिक्स, ई जे माइनस थीटा इज कॉस थीटा माइनस जे, विच इज द आयलर्स आइडेंटिटी। तो मैंने वही यहां पे इस्तेमाल की, दिस इज कॉस, सॉरी, ई माइनस जे थीटा, विच इज कॉस थीटा माइनस जे थीटा। 1/4 cos theta minus j sin theta. This is 120 degrees or 2 pi by 3 radians. Give the values to your calculator and get the values. And you will be getting an x of 1. Then put x is equal to 2, sorry, k is equal to 2. You will be getting another value. I hope it is not difficult. This is for 2. And then you can plot it here, that for 0, for 1, for 2, let it be have some value of 1/4, maybe 0, maybe 0, and this is your x of k. And this is your index k, and this is x of k, amplitude. मुश्किल है? Simple. Clear? और जी बिल्कुल, अगर वो है तो उसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं, ये पूरी की रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको आज शाम को मिल जाएगी। आप पढ़ने वाले बने, क्योंकि कल भी मैंने पूछा कि जी किसी ने वो वीडियो देखी जो कि लैबरेट के बारे में, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने सच्चे हैं, किसी ने कहा हमने बिल्कुल नहीं देखी, ना हमें जरूरत है। कहता अपना टाइम मत जाया करा करो। नो जी, पीडीएफ नहीं है अवेलेबल, उसको नहीं पढ़ते हो तो फिर इसको कौन पढ़ेगा। लुक एट हियर जेंटलमैन, अगर ये तो वैल्यूज थी, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए कि x of n is equal to a of n and the value of n ranges from here to here, 0 to n minus 1, and he's asking you about the x of k. So again the formula is this. वो कह रहा है कि the n value is from 0 to n minus 1, तो मैंने 0 to n minus 1 ही रहने दिया। a of n e minus j 2 pi k divided by n into n. अब अगेन यहां पे मैंने a of n की वैल्यू जो है, a of n की वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि जेनेरिक क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ ये किया कि इसका पावर भी n है और इसकी पावर भी n है, n को अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। इसको कोई भी वैल्यू नाम दे दें, मे बी p। तो अगेन दिस इज समेशन फ्रॉम 0 to n minus 1, समेशन n इज इक्वल टू 0 to n minus 1। अगर इसको आप p का नाम देते हैं तो p की पावर n। तो अगेन मसला तो फिजा के पास रुका हुआ है कि फिजा का फार्मूला बताए, फार्मूला पुट करें तो यू गेट द आंसर। क्लियर? तो दे आर वेरी सिंपल समथिंग, बट इफ यू अंडरस्टैंड, और अगर आप अंडरस्टैंड फिजा, व्हाई यू वांट टू गो आउट ऑफ द क्लास। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो मैथमेटिकल जो कोर्सेज होते हैं दे आर वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेकिन अगर आप इसको ये सोचेंगे मैं इसको रट लूंगा, दैट नॉट पॉसिबल, क्योंकि टीचर ने कहीं ना कहीं तो चेंज कर देनी है, कहीं भी चेंज हुआ है तो बस आई एम स्टक। क्लियर एवरीवन? तो वी हैव फिनिश्ड विद द डिस्क्रीट टाइम। In the next class, we will be doing the inverse sum part and the properties of the discrete time Fourier. So if you have any question, please come on. And if you don't have, then I may stop here.
यही अच्छा है। इस स्लाइड पे जाऊं। की वैल्यू 3 नीचे थोड़ा सा n की वैल्यू तो 3 निकाली थी हम लोग। यहाँ पे 2/n के होता है, तो जो छोटा n होता है ना वो इसमें आ नहीं रहा है, इसमें जिसमें ये बनाया ना आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ n आ नहीं रहा है। यहाँ पे हमने सिंपली n की वैल्यू 1 ले ली है जिसमें अगर हम जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पे वो n की वैल्यू क्या है है ना, ठीक है ना, ये आप पुट कर रहे हैं, आप यहाँ से